Good morning, dear students. Dear students, in the previous class, we have discussed about the structure of the heart. We have said that the heart, human heart, consists of four chambers: left atrium and left ventricle, right atrium and the right ventricle. In this way, there were four chambers, and along with four chambers, we have discussed about different types of valves which are present in the heart, right? These valves were bicuspid valve and tricuspid valve. Between the right auricle and ventricle, there was tricuspid valve, whereas between the left auricle and ventricle, there is a bicuspid valve or mitral valve. Even there was presence of semilunar valves. Remember, students, for understanding our next topic, that is cardiac cycle, it is very important to know the different types of valves that are present and the flow of the blood from the auricles to ventricles or in pulmonary artery or aorta, right? Locations are very important for you to understand. So now we are talking about the next topic, that is cardiac cycle. We know that our heart is responsible for pumping the blood. The main function of the heart is to pump the blood. But how does it do this action? What is responsible for this contractions? And once this contraction occurs, in which direction does the blood flow? That is very important to understand. And these events can be understood by the topic of cardiac cycle. Cardiac cycle is the sequential events occurring in the heart. It is a rhythmic event which is constantly going to occur in our heart. So, initially, we consider that both auricles and ventricles are in a relaxed state, right? What do we consider for understanding the cardiac cycle? Initially, both auricles and ventricles are in relaxed state, right? Relaxed state over here means they are not pumping the blood. They are in a relaxed state where they are not undergoing any contraction. ठीक है, तो मान लेते हैं कि चारों जो मतलब दो ऑरिकल और दो जो वेंट्रिकल है वो एक रिलैक्स स्टेट में है और इस रिलैक्स कंडीशन को कहा जाता है डायस्टॉल. इट इज नोन एज डायस्टॉल. रिलैक्स स्टेट में होते हैं तो इस ड्यूरेशन में क्या इवेंट्स होते हैं? When they are in the relaxed state, what is going to happen is the blood from pulmonary vein. Pulmonary veins अगर आपको याद हो तो ऑरिकल के साइड पे हमने पल्मोनरी वेन्स बनाई थी. ये पल्मोनरी वेन्स जो है वो लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लेफ्ट ऑरिकल को देते हैं, राइट? सो पल्मोनरी वेन, ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन एंटर्स into the left ventricle through left auricle. चलो इसे समझने के लिए let us briefly just I am drawing the diagram of the heart. ठीक है, already we have drawn the diagram before, we have understood it already, right? So here I am just briefing you up again with the diagram. This is the aorta, right? And this is the pulmonary artery. Over here is the pulmonary vein. Over here is the bicuspid and tricuspid valve. Here are the semilunar valves, right? Okay, ये हमने डायग्राम जो है वो हमने ऑलरेडी पहले बना दिया है, तो आपके सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे मैंने वापस बनाया. ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन जो है वो लंग से इमर्ज होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड
दो इट इज अ वेन, वो कैसा ब्लड लेके आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सबमिट करेगा, मतलब ये और ये पल्मोनरी वेन्स है और पल्मोनरी वेन्स के ओपनिंग्स यहाँ पे है, दैट इज इन द लेफ्ट ऑरिकल एंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑरिकल ये ब्लड किस में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो वो हमने लिखा है दैट ब्लड एंटर्स इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द लेफ्ट ऑरिकल, राइट? एंड व्हिच वाल्व विल बी प्रेजेंट ओवर हियर, बाय bicuspid valve, okay? Second thing, the blood from अब एक तो पल्मोनरी वेन से ब्लड आ रहा है, ठीक है, दूसरा ब्लड जो है वो कहां से आएगा, तो यहाँ पे हम बना देते हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। तो वेना केवा जो है वो ब्लड किसमें देता है, राइट ऑरिकल, और राइट ऑरिकल से ब्लड किसमें जाता है, राइट वेंट्रिकल। सो ब्लड फ्रॉम वेना केवा enters right ventricle through right auricle। अब ब्लड राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल में कहां से आएगा, तो ऑब्वियसली उनके साइड्स पे जो ऑरिकल्स हैं उनमें से, पर उसके लिए कौन से वाल्व्स ओपन होने चाहिए, bicuspid and tricuspid valves should remain open। So that is important over here to note down that at this time, at this step, bicuspid and tricuspid valves are open, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है डायस्टॉल। किसका डायस्टॉल, चारों ही चैम्बर्स का डायस्टॉल, जिसे जॉइंट डायस्टॉल भी कहा जाता है, क्योंकि ऑरिकल्स भी रिलैक्स्ड हैं, वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स्ड हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसीलिए इस टाइम पे कौन सा इवेंट होता है, तो इस टाइम पे पल्मोनरी वेन में से ब्लड जाता है टू द लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सेकेंड, वेना केवा से ब्लड जाता है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, क्रॉसिंग विच वाल्व्स, क्रॉसिंग द बाइकस्पिड एंड द ट्राइकस्पिड वाल्व्स। ये दोनों वाल्व्स ओपन होंगे, ठीक है। अब ब्लड किस में एंटर हुआ है, वेंट्रिकल्स में, ठीक है। अब क्या होगा कि एज सून एज द ब्लड स्टार्ट्स फिलिंग इनटू द वेंट्रिकल, ये ब्लड कहां पे फिल हो रहा है, वेंट्रिकल्स में फिल हो रहा है, राइट। एट दिस टाइम द SA node generates an action potential, right? So now the SA node generates an action potential. Now when SA node generates an action potential, what it is responsible, SA node was sinoatrial node। जब यहां से इंपल्स स्टार्ट होता है तो ऑरिकल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, राइट। एंड दिस इंपल्स एज अ रिजल्ट ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इसीलिए जो कुछ भी ब्लड ऑरिकल्स में है वो ज्यादा प्रेशर से किस में एंटर होगा, वेंट्रिकल्स में, एंड देयरफॉर pumps additional 30% of blood to the ventricles। वैसे भी वाल्व ओपन है इसीलिए ब्लड वेंट्रिकल में जा ही रहा है, राइट। पर अब क्या किया ऑरिकल्स ने, जोर से कॉन्ट्रैक्ट किया। जोर से कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो थोड़ा बहुत जो स्लो जा रहा था उसकी जगह पे प्रेशर से ब्लड कहां पे जाएगा, वेंट्रिकल में। फ्रॉम द राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। तो अब जो है SA नोड से जो सिग्नल है वो अब कहां पे आएगा, टू द AV नोड, राइट। सो नाउ द एक्शन पोटेंशियल और द इंपल्स वी कैन से रीचेस AV नोड। AV नोड से कहां जाएगा, AV फाइबर्स, और फाइबर्स से कहां जाएगा, बंडल of his to all the ventricular muscles,
राइट। सिग्नल जो है वो कैसे जाएगा, एसए नोड से स्टार्ट हुआ, फिर एवी नोड पे आया, फिर एवी नोड से कहां पे जाएगा, टू द बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से पर्किंजे फाइबर्स, ऐसे डायरेक्शन में फ्लो होगा, इंपल्स जाएगा, जिसकी वजह से अब कौन कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, वेंट्रिकल्स। अब ऑलरेडी ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में आ चुका है, ब्लड वेंट्रिकल्स में आ चुका है ऑलरेडी, ब्लड का अंदर आने की वजह से वेंट्रिकल्स में प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये प्रेशर बढ़ने की वजह से इमीडिएटली क्या होगा, the bicuspid and the tricuspid valve will close and the semilunar valves are going to open. So now bicuspid and tricuspid valves closes, bicuspid और tricuspid valve जो है वो क्लोज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ब्लड जो है वो अंदर जैसे जैसे भरता जाता है, फिल होता जाता है, वैसे वैसे वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ने की वजह से द फर्स्ट एक्शन दैट इज गोइंग टू हैपन इज द bicuspid एंड tricuspid valve will close। इसीलिए ब्लड जो है वो वापस ऑरिकल्स में तो एंटर होने नहीं वाला, ब्लड विल नॉट फ्लो बैक इनटू द ऑरिकल्स एंड स्टिल व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस, क्योंकि ऑरिकल्स ने वापस थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया, इसीलिए 30% एडिशनल ब्लड एंटर्ड इनटू वेंट्रिकल्स, मतलब वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ तो रहा ही था, अब और बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या होगा कि सेमील्यूनर वाल्व्स विल ओपन एंड सेमील्यूनर वाल्व्स विल ओपन। अब सेमील्यूनर वाल्व्स ओपन होने की वजह से क्या होगा, ब्लड फ्रॉम the right ventricle is going to enter, क्योंकि अब क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर मसल्स तक सिग्नल पहुंच गया है, इसीलिए अब कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए सेमील्यूनर वाल्व्स जो है वो ओपन, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व्स क्लोज। सेमील्यूनर वाल्व ओपन होने से क्या होगा, ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल enters into pulmonary artery, enters pulmonary artery through which valve, through pulmonary semilunar valve, through the pulmonary semilunar valve, right? And blood from left ventricle, blood from लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा, एंटर्स एओर्टा थ्रू एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व, एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व, मतलब ब्लड जो है वो राइट और वेंट्रिकल में से पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट में से एओर्टा, राइट। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में ब्लड पहुंचाएगी और एओर्टा से टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो दिस स्टेप इज गोइंग टू अकर व्हेन ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, मतलब देखो पहले क्या था, चारों रिलैक्स स्टेट में थे, ऑरिकल्स भी वेंट्रिकल्स भी, फिर क्या हुआ, ऑरिकल्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, मतलब ऑरिकल्स का क्या होगा, सिस्टोल, राइट। ऑरिकल्स का क्या हुआ, सिस्टोल। ऑरिकल्स का सिस्टोल होने से, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड किस में जाता है, वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल्स के सिस्टोल होने से ब्लड किस में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा, राइट। सो देयर आर 3 इवेंट्स occurring, joint diastole, auricular systole and ventricular systole। अब जब ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में चला ही गया है तो अब क्या होगा, वापस वेंट्रिकल्स में प्रेशर क्या होने लगेगा, अगेन द प्रेशर विल डिक्रीज। क्यों, क्योंकि ब्लड जो वेंट्रिकल्स में था जिसकी वजह से वहां पे प्रेशर एक्सर्ट हुआ था, वो प्रेशर तो अब कम हो जाएगा क्योंकि ब्लड तो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में चला गया है। So as the blood moves out, pressure is going to decrease. As the pressure decreases, as the pressure
of the blood decreases. In what? In ventricles. अब प्रेशर डिक्रीज हो गया तो सेमील्यूनर वाल्व्स विल अगेन क्लोज. व्हाट विल हैपन? सेमील्यूनर वाल्व आर गोइंग टू क्लोज. एंड व्हाट इज गोइंग टू ओपन? Bicuspid and tricuspid valve are going to open. मतलब bicuspid tricuspid valve जो है वो वापस ओपन हो जाएंगे क्योंकि प्रेशर कम होता जा रहा है. जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाएगा वैसे पहले सेमील्यूनर वाल्व बंद हो जाएंगे ताकि पल्मोनरी आर्टरी में से ब्लड वापस वेंट्रिकल में ना जा सके, एओर्टा में से ब्लड वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में ना जा सके. इसीलिए सेमील्यूनर वाल्व पहले बंद हो जाएंगे और प्रेशर कम हो जाएगा. प्रेशर कम हो जाने की वजह से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व वापस ओपन हो जाएंगे. वापस ओपन हो जाएंगे मतलब अब क्या होगा? अगेन द स्टेप विल बी रिपीटेड दैट व्हेन बोथ आर रिलैक्स्ड, व्हाट इज गोइंग टू फिल? द हार्ट इज गोइंग टू बी फिल्ड अप विद द ब्लड. राइट. सो दिस इज साइक्लिक इवेंट. ये हो जाने के बाद वापस से यहां से स्टार्ट होगा कि वापस डायस्टोल है चारों, वापस ब्लड आएगा, ऑरिकल में आएगा, वेंट्रिकल में जाएगा, ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन, अगेन वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन. राइट. So this sequential events are going to continue and that is our cardiac cycle. Students, in the next class we are still further going to discuss cardiac cycle. I will make you write the steps of the cardiac cycle, that how one by one the steps are going to occur. Right. So you will have to understand this topic thoroughly and this will be discussed in two different ways so that you can better understand. But first of all, what you have to primarily do, you have to remember the flow of blood. Right. हार्ट है तो हार्ट में कहाँ से ब्लड आने वाला है, कहाँ से आता है, लंग्स से आता है, बॉडी पार्ट से आता है, ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है. ये समझ लोगे तो ये टॉपिक्स आपके लिए समझना इजी होगा. अदरवाइज यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज्ड इन द फ्लो ऑफ ब्लड इटसेल्फ एंड यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट आउट टू ऑल दिस इवेंट्स व्हिच आर हैपनिंग. राइट. तो यहाँ पे एक और बार रिकॉल करवा रही हूं मैं. वेना केवा कैसा ब्लड लाता है? डीऑक्सीजनेटेड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से लाता है? बॉडी पार्ट से. और कहां पे डालता है? इनटू द राइट ऑरिकल. ठीक है. दूसरी चीज, पल्मोनरी वेन्स. Pulmonary veins are the only veins which carry oxygenated blood. कहां से आता है? लंग्स में से. और लंग्स से कहां पे देता है? दो यहाँ पे ड्रॉ किया है पर उसके ओपनिंग्स यहीं पे है एंड दैट इज इनटू द लेफ्ट ऑरिकल. राइट ऑरिकल से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व. वेंट्रिकल में ब्लड आ जाने के बाद वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड क्लोज हो जाते हैं, सेमील्यूनर वाल्व्स ओपन हो जाते हैं. इसलिए ब्लड राइट वेंट्रिकल से जाता है पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है एओर्टा. पल्मोनरी आर्टरी राइट और लेफ्ट है इसलिए राइट लंग और लेफ्ट लंग में जाएगा. एओर्टा जो है इट इज गोइंग टू कंटिन्यू एंड इट इज गोइंग टू गिव द ब्लड टू ऑल द पार्ट्स थ्रू डिफरेंट आर्टरीज. जैसे कि रेनल आर्टरी होती है तो किडनी तक जाता है. राइट. फिर वैसे ही हेपेटिक आर्टरी होती है तो लीवर को जाता है. वैसे अलग अलग आर्टरीज होती है. एओर्टा फर्दर डिवाइड्स इनटू अदर आर्टरीज. ठीक है. तो ये चीजें, ये फ्लो जो है वो समझना जरूरी है. कार्डियक साइकिल में 3 इवेंट्स. पहला जॉइंट डायस्टॉल, मैं यहाँ पे जॉइंट ही लिख देती हूँ वर्ड सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज. जॉइंट डायस्टॉल जब चारों रिलैक्स्ड है. ऑरिक्यूलर सिस्टॉल जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. जब एसए नोड इंपल्स जनरेट करता है तो ऑरिकल्स पहले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. फिर ये इंपल्स जाता है टू द एवी नोड. एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से पर्किंजे फाइबर्स तक जब पहुंचेगा तब क्या होगा? वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन. इसलिए थर्ड स्टेप है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने पर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में जाएगा और फिर सेमील्यूनर वाल्व क्लोज हो जाएंगे, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएंगे और वापस ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में फिल होना स्टार्ट हो जाएगा. सो दैट इज द सीक्वेंशियल प्रोसेस व्हिच इज गोइंग टू अकर and this is our pumping of the heart and this sequential events are collectively known as a part of cardiac cycle.